Yeah. Good morning, all of you. And if you remember, in the last class, we were discussing about the Sufism. We discussed about the five pillar of Islam, as well as we discussed about different feature which was already there in Sufism, and we discussed growth of the Sufism, how Sufism was spreading in the India. We discussed about the Khanqa, privilege, Griyat. Also, we discussed different kind. First, silsila about the Chishti. There was Olia also. There was other. I told you there was five or six silsilas, but Chishti was the famous one. So we discussed about the Chishti. We discussed about the Chishti Khanqas as well as the Chishti famous leaders and the Jiryat and Qawwali. So today what we are going to discuss, it is basically related to the language and communication, that what kind of the language and communication developed during the Chishti movement, and what was the change occur into the Indian society. Okay. Yeah. Basically, we in last class we discussed about the sama, that when they were singing the Qawwali, that was basically related to a sama, that they were creating an atmosphere which was connecting the devotee towards the Allah. And also I told you that basically the leaders of the Sufi was mediocre, who was telling the idea how they supposed to connect with the Allah. Laterally, that same sama also played important role in developing the certain things, like Chishti adopted the local language, because if you have to explain your idea, you're supposed to adopt the local language. If they use Farsi and other Persian language, so the population of India will not able to understand, and then it might be affected to their popularity. See, अगर इंडिया के जो लोग हैं उनकी कॉमन टंग में वो बात ही नहीं करते, तो क्या होता कि वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को समझा नहीं पाते उस आइडियोलॉजी को जो बेसिकली वो समझाना चाह रहे थे। और अगर वो आइडियोलॉजी उनको समझा नहीं पाते, तो उसकी वजह से क्या होता कि कहीं ना कहीं जो लोग थे वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो चिश्ती सिलसिला कन्वर्सिंग इन द हिंदवी बेसिकली इट वाज अ लोकल लैंग्वेज इन द नॉर्थन इंडिया दैट टाइम पीरियड। सो दैट्स व्हाई दे यूज हिंदवी टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज़ and their idea and spiritual way to the local people. And also they compose many of the verses in that same kind of the local verses, composition of the verse in the local language, like Baba Farid, one of the Sikh gurus. So Baba Farid, who composed many verses in the local language, and also composed the Guru Granth Sahib, which you know that this is the holy book of the Sikhism, कि सिखिज्म की जो होली बुक है गुरु गोविंद साहिब, वो इन्होंने बनाई। ऑल्सो बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लोकल लैंग्वेज में कंपोज की। इट्स नॉट ओनली दैट the only few person was using this. Now everyone is trying to make the long poems or mansivs. What is long poems and mansiv here? It was supposed to express the idea of divine love using human. Okay, so they was explaining the idea of human love. Human love means human love was used as allegory. What is allegory means? If you remember, allegory was explained in the 10th class history, that allegory is when you are representing something else with something else. Like in 10th class you might read about the Germania, and Germania was basically representing the German nation. Germania was basically representing the German nation. Also you might read about the Marian, which was representing the French nation. So there was certain allegory, like Bharat Mata is an allegory which is representing our Indian territory. So that's why they use human love as an allegory to present the divine loves. Or basically some of the people write about that. This is like Prem Akhyan and Padmavat. Padmavat, you know that it is a story of Padmavini and Ratan Sen, and you also heard the Padmavati movie, so you know the what is Padmavat. सो पद्मावत के बारे में आपको पता। तो इस तरह की जो पद्मावत या अदर मतलब प्रेम आख्यान से इस तरह की स्टोरीज़ को लिख के उन्होंने क्या किया, ह्यूमन लव को रिप्रेजेंट किया। लेकिन ह्यूमन लव को इस तरह से प्रेजेंट किया, उसको स्पिरिचुअल करने की कोशिश की। ह्यूमन लव को एलोगरी रखते हुए उस परमात्मा का जो प्रेम है वो लोगों को सिखाने की कोशिश की। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया, जिसके जरिए उन्होंने सोसाइटी से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। कि लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया। लोकल लैंग्वेज में उन्होंने हिंदवी को अडॉप्ट किया, और उसमें वर्सेस वगैरह हैं, जो भजन वगैरह हैं, श्लोक्स वगैरह वो लिखने स्टार्ट किए।
लॉन्ग पोएम्स वगैरह बनानी स्टार्ट की। उन पोएम के ज़रिए लोगों को जो डिवाइन लव है उसके बारे में समझाने की कोशिश की। पोएम में ही उन्होंने फिर लव स्टोरीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और लव स्टोरी के ज़रिए उन्होंने एक जो स्पिरिचुअल लव है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की। द आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ दैट, दे वर ट्राइंग द सिंबॉलिक ऑफ द सोल जर्नी ऑफ द डिवाइन, कि वो जो सोल जर्नी है डिवाइन की उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। सो दे वाज ट्राइंग टू use this kind of thing to explain the spiritual point of view. Next is in South India also Sufism was spread in different point of the South India. We found different kind of the story. So genre is आपको I might explain you the genre supposed to be mean what is the what type of the poetry it is like. Have a look, it will be might be a fantasy TV series. I have an example of the TV series, like there are many kind of the TV series. Some kind of the TV series is fantasy, some kind of TV series is mysteries, and so some kind of मूवीज आर बेसिकली रिलेटेड टू एक्शन. सो दीज आर द जॉनर कि एक्शन की मूवी है या हॉरर मूवी है या फिर कॉमेडी की मूवी है, ये जॉनर होते हैं. सो एक डिफरेंट जॉनर ऑफ पोइट्री है जो वो कहीं ना कहीं हमें बीजापुर और कर्नाटका में साउथ इंडिया में देखने को मिलता है. और ऑल्सो शॉर्ट पोएम ऑफ द दक्कनी, जिनको बेसिकली शॉर्ट पोएम ऑफ दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है. एंड बेसिकली दिस काइंड ऑफ द पोएम वॉज एंड द सॉन्ग्स वॉज संग बाय द फीमेल ड्यूरिंग द डोमेस्टिक वर्क वेन एवर दे वॉज ग्राइंडिंग एंड स्पिनिंग. यू नो दिस वॉज अ रूटीनल वर्क in the earlier time period. It was not like that there was machine to do these things. This was a general work. Every day people was grinding the basically wheats and other things. Also there was spinning at regular level. So that kind of the work was regularly or daily, you can say it was a domestic it was a part of the domestic work. Okay, so जो females थी वो domestic work के अंदर ही spinning और grinding वगैरह करती थी, और उस टाइम पे वो ये जो दक्कनी poems हैं या जो songs हैं उनको बहुत अच्छे से गाती थी. Also it was also represented in the lurinama और शादीनामा. What is lurinama? It is connected to the lullabies. Lullabies is an English word which is basically in Hindi we call lori. Okay, like we have an ideology that mother supposed to sing a song for a baby when the baby is trying to sleep, or the mother wants that baby supposed to sleep well. So they are singing that kind of the song in the North India also. You heard about it. आपने लोरी के बारे में सुना ही होगा कि एक माँ जो है अपने बच्चे को लोरी सुनाती है कहीं ना कहीं उसको अच्छी नींद दिलाने के लिए, उसको सुलाने के लिए. सो दैट इज बेसिकली लूरीनामा. ऑल्सो शादीनामा, द सॉन्ग्स ऑफ द वेडिंग, जो वेडिंग पे बहुत सारे सॉन्ग गाए जाते हैं. सो दिस वॉज द ऑल्सो पार्ट ऑफ द सूफीज्म inspired, and these was basically inspired by the bhakti tradition of the this was also inspired by the bhakti tradition. कन्नड़ा वचना जाना चाहिए था यहाँ पे, आई एम सॉरी, दिट इज कन्नड़ा, इट्स सपोज टू बी कन्नड़ा. ओके, नॉट कैनेडा, इट इज कन्नड़ा. ओके, या this is Kannada. Okay, Kannada basically, you know, Kannada is a language. So it is supposed to be Kannada vachanas which you already discussed about the like Veer Saivism and Lingayat movement we discussed. So this kind of the movements was there. So that time of the Kannada vachanas, or also like in Marathi there was Abhangas also was there. Okay, so the vachanas of Lingayat supposed to be there, not Delhi. This is the word, vachanas of Lingayat. Okay, Lingayat you already know, we discussed in the Bhakti movement. Yup, Lingayat. So that is Lingayat. So that was also part of it. तो कहीं ना कहीं क्या था कि साउथ इंडिया में भी जो सूफीज़म इसी तरह से स्प्रेड हो रहा था, उसमें डिफरेंट जॉनर्स थे. बीजापुर और कर्नाटका की तरफ हमें अलग से जॉनर देखने को मिलते हैं जिसमें शॉर्ट पोएम्स थी. जो दक्कनी बेसिकली लैंग्वेज के लिए बोल रहा है कि दक्कनी लैंग्वेज में लिखी जा रही थी, जिसको जो फीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक वर्क के दौरान सिंग करती थी, चाहे वो ग्राइंडिंग करे या स्पीकिंग करे. ऑल्सो लोरी या शादी के सॉन्ग के रूप में बोला जाता था. और ये कहीं ना कहीं जो इंस्पायर थी वो भक्ति ट्रेडिशन से इंस्पायर थी, जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर बेसिकली लिंगायत जो मूवमेंट हुआ उससे स्प्रेड हुई थी, और मराठी में अभंगाज के जरिए स्प्रेड हुई थी. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट वाज द कनेक्शन ऑफ द सूफीज एंड द स्टेट. एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द किंग्स. Here state is supposed to be known as kings. That what was the connection of the kings? Few things we already discussed, that Akbar visited the Dargah of the Chishti. Also we discussed that MBT and Muhammad bin Tughlaq also visited the Dargah. So obviously the king was visiting the Dargah, means there was a connection between the kings and the Sufi lords. So what was the connection? We have to analyze that. First is maintain distance from the worldly power. So
See, the Sufis' idea was to maintain distance from the worldly power. Whatever worldly power means, see, ulema was always connected to the ruling authority. Okay, so that was also idea of Islamic tradition, but in starting we discussed that ulema was the one who was participating in the politics, but Sufi always believed that there is a one Allah and one God we supposed to worship, we supposed to devote ourselves to the Allah, we supposed to try to meet with that Allah, we don't supposed to involve in the politics on these things. So that's why it was a totally separate idea कि starting से जो सूफी हैं वो रूलिंग अथॉरिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, वो राजा वगैरह के साथ किसी प्रकार के कनेक्शन नहीं रखते थे जिस तरह से उलेमा रखती थी, क्योंकि उलेमा तो काइंड ऑफ लीड करती थी राजाओं को कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है अकॉर्डिंग टू दी सरिया के रूल के अकॉर्डिंग वो उलेमा जो है उनको लीड कर रही थी। लेकिन सूफीज़म जो सूफी लोग थे वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे, बट नॉट कम्प्लीटली आइसोलेशन, बट इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो कम्प्लीटली आइसोलेशन में थे और उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था राजाओं के साथ, या दे वर नॉट मीटिंग द किंग्स। ओके, सो बिकॉज द किंग वॉज ग्रांटिंग द डोनेशन, किंग्स एंड द पोलिटिकल एलिट वॉज ग्रांटिंग lands and giving them donations. So जो kings वगैरह थे they was also giving them certain kind of the grants of the lands and other and donation also. So that kind of the benefit they were taking from the political authority. Donation was in the cash and the kinds both, because but they were not asking for the huge money or huge land. The donation supposed to be fulfill the necessity like foods, cloth, living quarters and ritual necessities. Whatever the need, whatever the basic need of the Sufis, that was only fulfilled by the donation, nothing else, nothing extra they were asking or nothing extra they were taking. They were only taking कि वो जो डोनेशंस वगैरह ले रहे थे वो कैश और काइंड्स में लेते थे, पर उतना ही लेते थे जिनसे कि वो फूड को अरेंज कर सके, क्लोथ को अरेंज कर सके, जो लिविंग क्वार्टर्स है मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उनको मेंटेन कर सके, और रिचुअल नेसेसिटीज मतलब जैसे शमा वगैरह को ऑर्गेनाइज करना, कवाली वगैरह गाना, इन सब को मैनेज करना ही बेसिकली उनकी कहीं ना कहीं अथॉरिटी के अंदर था। सो जो इससे क्या हुआ कि इट वाज आल्सो एनहांसिंग द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख, जिसकी वजह से जो मोरल अथॉरिटी थी शेख्स की कि द शेख्स आर द गुड पीपल, दैट वाज आल्सो स्प्रेडिंग ऑल ओवर द इंडिया, कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो सिर्फ उतना ही डोनेशन ले रहे थे, पॉलिटिकल पावर से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन डोनेशन वगैरह एक्सेप्ट करते थे। किस चीज़ के लिए डोनेशन एक्सेप्ट करते थे कि ताकि वो अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को कहीं ना कहीं मेंटेन कर सके, तो उसकी वजह से उनकी जो छवि थी पब्लिक की नज़र में काफ़ी साफ थी। एक पॉइंट जो बीच में रह गया, sorry, Aqwaf and Inam. What was Aqwaf and Inam? Aqwaf and Inam was the Sultan Tunis set a charitable trust. Okay, so Aqwaf is supposed to be charitable trust established by the Sultan, and Inam was hospic and granted tax-free land. Inam was basically a land given to the Sufi people. In on that land there was no tax. Okay, it was tax-free, and they can use the land to make the dargah or produce the something for dargah. Okay, so basically kings ने क्या कर रखा था, एक डिपार्टमेंट ही अलग से अपॉइंट कर दिया था डोनेशन के लिए, एज वेल एज कहीं ना कहीं फ्री टैक्स की जो लैंड है वो दी गई थी ताकि उसको वो लोग यूज़ कर सकें, लोगों को मतलब दरगाह वगैरह बनाने के लिए। सूफी एंड द स्टेट में नेक्स्ट हमारा जो क्या है, बेसिकली पीपल बिलीव इन द मिरेशियल पावर। सो इन लास्ट लाइन वी वर डिस्कसिंग दैट व्हेन दे वर नॉट कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड दे वर जस्ट हैविंग द डोनेशन टू सर्वाइव, तो दैट वाज क्रिएटेड अ गुड काइंड ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द पीपल। सो इसी वजह से वो पॉपुलर हो गए थे लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जाने जा रहे थे। इस वजह से जो अपनी पीटी और स्कॉलरशिप क्वालिटीज़ थी उनकी वजह से लोगों का जो बिलीव था, द बिलीव ऑफ द पीपल वाज इंक्रीजिंग इन दैम। सो कहीं ना कहीं उनका बिलीव बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ता जा रहा था, एंड इट वाज मिराकुलस पावर। ओके, मिराकुलस पावर मतलब कहीं ना कहीं वो मानते थे कि कहीं जो है उनके बीच में मिरेकलस पावर का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उनकी जादुई पावर, या फिर हम ये कह सकते हैं एक बियॉन्ड सुपरनेचुरल पावर के रूप में बिलीव करते थे कि वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। लोगों को ये बिलीव होने लगा था कि वो लोग मिरेकल कर सकते हैं, एंड वो मतलब एक भगवान से उनका कनेक्शन है, इसलिए वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक कॉमन ह्यूमन नहीं कर सकता। किंग वॉज यूज टू सिक्योर द सपोर्ट, एंड वाई नाउ टिल नाउ वी डिस्कस कि किस तरह से जो सूफीज़ हैं वो किंग से डोनेशन वगैरह ले रहे थे, या लैंड वगैरह ले रहे थे, या सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे। फिर बट किंग ये डोनेशंस वगैरह क्यों दे रहे थे, इसका भी तो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि किंग का कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो ऑब्वियसली किंग यूज द सिक्योर द सपोर्ट दैट सी मैनी ऑफ द पीपल वाज फॉलोइंग दैट सूफी सेंट्स, व्हेन पीपल वाज फॉलोइंग द सूफी सेंट एंड किंग सपोज टू बी लेजिटिमाइट बाय द पीपल,
I already explained many times in the class that what is legitimation. Legitimate government is supposed to be which is acceptable by the people. Legitimate government वो होती है जो लोगों ने एक्सेप्ट की हो, जैसे डेमोक्रेसी में जिसको भी चूज करते हैं उसको लेजिटिमेट बोला जाता है, क्योंकि वो हमारे द्वारा इलेक्टेड होता है, हमने एक्सेप्ट कर रखा है. सो किंग को भी ज़रूरत होती है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लें एज ए किंग, ताकि उसके जो रेन है, जो मतलब जो उसका रूलिंग टाइम पीरियड है उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी दंगे फसाद ना हो, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें. तो उसके लिए उसको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है. और वो लोगों की सपोर्ट किसके पास थी? बेसिकली सूफी सेंट्स के पास थी, क्योंकि सूफी सेंट्स जो हैं अपने मिरेकुलस पावर की वजह से, अपने सादे जीवन की वजह से, अपने मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कहीं ना कहीं फेमस होते जा रहे थे. तो उनके फेवर में बहुत सारे लोग थे और किंग जो है उन लोगों को अपने अंडर करना चाहता था. प्रेजेंट पॉलिटिक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है. अगर आप देखेंगे तो कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है जब वो इलेक्शन वगैरह लड़ने वाला होता है, तो कोई भी जो बाबा वगैरह होते हैं जिनके पास ह्यूज संगत हो, जिनको फॉलो करने वाले बहुत लोग हो, तो उन बाबा वगैरह को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में वो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स दे के या किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको वोट मिल जाए. सेम आइडिया अर्लियर टाइम पीरियड में भी था, चाहे वो हिंदू रूलर्स के टाइम पे देख लो, चाहे मुस्लिम रूलर के टाइम पे देख लो. इन्होंने क्या किया? बेसिकली जो आइडिया था कि कहीं ना कहीं सूफी सेंट को अपने अंडर रखने का ये पर्सपेक्टिव था कि अगर इनका हम मदद करेंगे, इनसे हम कनेक्ट होकर रहेंगे तो हम लेजिटिमेट रहेंगे, क्योंकि इनके सपोर्ट में पब्लिक है और हमें पब्लिक की सपोर्ट चाहिए. पब्लिक हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करे, ये सबसे ज़्यादा है. एमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड आइडिया ऑफ द उलेमा एंड सूफी. ऑल्सो हम जानते हैं कि जब एमरजेंस हुआ दिल्ली सल्तनत का, तो उस वक्त में उलेमा जो है बेसिकली एक पार्ट होता था. अब आप फर्स्ट +1 में आपने पढ़ा है कि व्हेन इस्लाम वाज एमर्जिंग उलेमा वाज प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सप्लेनिंग द रूल्स रिलेटेड टू दिस एरिया. कि उलेमा क्या है? इस्लामिक जो टेरिटरी है वो जब एमर्ज होने वाली, इस्लाम के एमर्ज होने के साथ जैसे जैसे टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट किया और जो खलीफा का रूल आना स्टार्ट हुआ, तो उसमें उलेमा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, क्योंकि वो कुरान शरिया जो है लॉ है मुसलमानों का, उसके अकॉर्डिंग लोगों को एक्सप्लेन करती थी. लेकिन जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में एस्टैब्लिश हुई तो उनके साथ कुछ सूफीज भी आए थे. ओके, सो उस तरीके से सूफीज जो है कहीं ना कहीं, और सूफी कभी भी डायरेक्टली रूलिंग अथॉरिटी के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे. लेकिन उलेमा क्या है? राजाओं को रोक सकती थी, उनको मतलब जैसे रजिया के टाइम पीरियड पे भी जब रजिया को इल्तुतमिश ने चूज़ किया तो उलेमा ने इसे इनकार कर दिया, क्योंकि फीमेल जो है वो अथॉरिटी के लायक नहीं होती, ये उलेमा का मानना था, तो उन्होंने मना कर दिया. लेकिन सूफीज को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था. तो कहीं ना कहीं सूफीज जो है किंग के लिए अच्छे भी थे, क्योंकि वो उनको लेजिटिमेट करवा सकते थे, एज वेल एज उनकी पॉलिटिकल किसी भी ऑर्डर में वो किसी प्रकार का दखल नहीं करते थे. बट उलेमा वाज ऑलवेज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द पॉलिटिकल सिचुएशन. दैट्स व्हाई द उलेमा वाज नॉट दैट मच loved or that much respected by the good rulers. Okay, there was ruler who followed the ulema and the orthodoxical part of the ulema also. ऐसे रूलर भी थे जिन्होंने ऑर्थोडॉक्सिकल रूल को फॉलो किया, बट ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया. सो ओलिया इनक्रेड विद द गोड. सो बेसिकली क्या हो रहा था कि जो टर्क्स हमारे आए हैं जिसमें सरिया वगैरह जो फॉलो कर रहे थे, उसके बाद जो सुल्तान है बेसिकली ये माना जाता था कि जो सूफी सेंट हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गॉड. directly connected to they have the connection to the god, and conflict between the Sufi and Sultan. But it was not that there was never a conflict between the Sufi and Sultan. There was conflict between the Sufi and Sultan, and but it was so we can say that was a positive point also, that was a negative point also of the Sufi and the state. Title name like Sultan ul Masik, and Sufi saint also attained some kind of the title sometime, like Sultan ul Masik was the one of the famous titles took by the Nizamuddin Aulia. So Nizamuddin Aulia was also famous. Also we discussed in the last class that Garib Nawab was basically title taken by the Chishti. So this kind of the title was taken by these kind of the saints also. This was a particular part of the Sufism. So this was the idea of language and communication as well as the Sufi and the state. In the next class we will discuss about the Kabir and the other famous like Sikh saints and other. So stay tuned and be connected. Stay home, stay safe. Any problem please feel free to call. Have a nice day. And one more thing I left to explain, that what was the conflicts region. Like sometimes the kings, when the king start the Sajdan Pabos, means whenever whoever he come to meet the king supposed to bend down and touch the feet and kiss the feet. That idea मतलब पैर छूने का पैर को जो किस करने का आइडिया था किंग का दरबार में लागू किया था बलबन ने बेसिकली. सो वो जो आइडियाज़ थे, बलबन ने 2 आइडिया लागू किए थे कि आप जो दरबार है उसमें हंसी मजाक नहीं कर सकते, आपको किंग के सामने झुकना होगा, उसकी मतलब सिजदा और पाबोस के नाम से जानी जाती
जाती थी, तो वो सब जो है सूफी सेंट फॉलो नहीं करते थे, वो किंग को वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था कॉन्फ्लिक्ट्स का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।